Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the gears, so how they affect your troops attack. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गियर्स के बारे में. वो कैसे अफेक्ट करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा. वो आपके ट्रूप्स की पावर कैसे बढ़ती है. मेरे पास ऑलरेडी हाई लेवल है, इससे ही मैं ये स्टार्ट करना पड़ेगा. मैं लो लेवल सेलेक्ट नहीं कर सकता. Guys, I cannot select the low levels, but I have to start with these high levels only. I had already the low levels, so I picked this ground troop gear to show you quickly. दोस्तों मैं आज आपको ये गियर के बारे में बताता हूँ. तो मैं लो लेवल तो सिलेक्ट कर नहीं सकता, मेरे पास हाई लेवल है, इसलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ ग्राउंड ट्रूप के लो लेवल से. इसमें एक्सप्लेन कर दूँगा कि आपको क्या करना है. Guys, when you collect these 3 gears, the 5% attack, this will compose. In the top picture you can see the one right hand side, the top corner, one is missing. When I collect one more, I can compose to level 2. I don't suggest you buy them with the 200 gems because they are very cheap on the wall. Sometimes you get for free from the wall, free from the spinning wheels. दोस्तों वो स्पिनिंग व्हील जो है उसमें या वॉल पे जब फ्री वो आपको 3 स्पिनिंग वो मिलते हैं, पेट्रोलिंग मिलती है, तो उसमें भी आपको कई बार मिल जाता है. ये परचेस मत करना, 200 जेम्स स्पेंड मत करना. Guys, when you collect 3 of these, I will go back and show you if I have any 3 of the gears. दोस्तों मैं बैक जाता हूँ, देखता हूँ कि किसी में मेरे पास 3 गियर्स पड़े हों, तो आपको कंपोज करके बताऊँगा. Let's go back here, compose. Here you can see the mounted troops attack gears I have. When you collect 3 of them, that will compose into level 2, and when you have level 2 3 gears, that will compose to level 3. But remember, you cannot select the low level later on. Obviously you require the high level. Why do you select the low level? दोस्तों आप क्यों सेलेक्ट करेंगे लो लेवल, आपको तो हाई लेवल ही चाहिए. तो हाई लेवल के लिए पहले आप ये 3 कलेक्ट कर लें, ये कंपोज करेगा. आई शो यू द कंपोजिंग कंपोज्ड. ये मेरे पास 3 हो गए. अब मैं कंपोज करूँगा इसे, ये कंपोज हो जाएगा हाई लेवल में. अब मेरे पास 2 हो गए. ये मुझे 3 करने के लिए मुझे और भी लो लेवल के कलेक्ट करने पड़ेंगे. अब जब भी मिलेंगे तो आप रखना, सेल मत करना. तो आप क्या करना, ये गियर्स को कंपोज करके हाई लेवल में कन्वर्ट करके तो उससे हाई लेवल बना लेना. जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपकी पावर, अटैकिंग पावर बढ़ती जाएगी. Guys, when you are collecting these ones and composing into high level, as much high level you have, that much power you will increase for the attacking and in other sections as well. For example, HP, defense, and also the other gears work for the other sections. दोस्तों ये आपके दूसरे गियर भी आपके हाई लेवल के होंगे तो आपके उन सेक्शंस में काम करेंगे. आई शो यू 1 second. I haven't select this mounted troop or selected because we start with the ground troop with the low level, because I have level 1 ground troop, and I will, before selecting, I will show you the power. दोस्तों मेरे पास ग्राउंड ट्रूप जो है वो लो लेवल के पड़े हैं, तो उससे सेलेक्ट करने से पहले, गियर को सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको उनकी पावर दिखाऊंगा, जो कि जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो उनकी पावर जो है 41% और बढ़ जाएगी, और प्लस 70 अटैक पावर और भी ऐड हो जाएगी. you can calculate 41% how much it could be, but
I'll show you quickly. So let's go back. Here's level 1. So my ground troop attack is 277. I haven't selected the gear. I will select the gear, then we will come back. दोस्तों मैंने गियर सेलेक्ट नहीं किया, अब मैं सेलेक्ट करूँगा तो वापस आएंगे, हम देखेंगे। अभी 277 277 पावर थी। कंफर्म। अब हम वापस जाएंगे। नाउ इट्स 388। सो 388 हो गई इसकी पावर, टोटल पावर जब मैंने गियर सेलेक्ट किया। So whichever gear you are selecting depends on the percentage, that much percentage of your attacking power will be increased. If you selecting HP defense, that will be increased as well. So अगर आप HP और defense की पावर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी बढ़ जाएगी। So ऐसे गियर काम करते हैं। अटैक डिफेंस, चलो हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा तो कितनी पावर थी डिफेंस और HP की। अगर नहीं तो पीछे थोड़ा जाके देख लें, मुझे भी याद नहीं रहा, 1700 कुछ था। तो I don't remember exactly the number of the HP and defense. You can see the defense and HP is increased. So when you are not selecting any like पर्टिकुलर गियर, जब आप कोई भी गियर सेलेक्ट नहीं कर रहे तो आपकी पावर नॉर्मल रहेगी। योर पावर विल बी नॉर्मल, बट व्हेन यू गोइंग टू द बैटलफील्ड यू नीड ऑल ट्रूप्स अटैकिंग पावर। सो यू दोस्तों, आपको सभी ट्रूप्स की अटैकिंग पावर चाहिए होती है, तो जिससे आप ऑल ट्रूप्स अटैक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो 20% बढ़ जाएगा। दैट विल इंक्रीज 20% ऑफ ऑल ट्रूप्स अटैक। इफ़ यू आर सेंडिंग ओनली रेंज ट्रूप अटैक, आई सजेस्ट सेलेक्ट द रेंज ट्रूप अटैक गियर। सो अगर दोस्तों आप रेंज ट्रूप सेंड कर रहे हैं माउंटेड ट्रूप को मारने के लिए, तो आप ये रेंज ट्रूप के गियर्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लें। जब आप फाइट में जा रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास हाईएस्ट लेवल ये है तो आप यही ऑल ट्रूप्स सेलेक्ट करके जाएं। सो गो इनटू द बैटलफील्ड विद द ऑल ट्रूप्स अटैक। सो दिस विल इंक्रीज ऑल ट्रूप्स अटैक 20%। सेज मशीन, ग्राउंड ट्रूप, रेंज ट्रूप, माउंटेड ट्रूप, everything will be all the troops power will be increased to 20% or whichever level of your gear is. अगर आपके पास if you have a low level then it will be increased to the 5%. If you have the highest level, depends on the level how much power you can gain. So दोस्तों, आपके गियर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पावर कितनी बढ़ सकती है। तो जो सा भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी पावर बढ़ जाएगी। So for hunting the mounted troop attack HP and defense you required. So hunting के लिए आपको माउंटेड ट्रूप गियर्स की ज़रूरत पड़ती है जब आपने मॉन्स्टर्स को मारना है। हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हाई लेवल अगर आपके पास गियर्स हैं तो बहुत बढ़िया, ये आपकी पावर्स को बढ़ा देंगे, अटैकिंग पावर और HP और डिफेंस को। अगर बैटल में जाना है तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप रेंज ट्रूप सेंड कर रहे हैं रेंज सेलेक्ट करें, अगर ऑल मिक्स ट्रूप्स हैं तो ऑल मिक्स ट्रूप्स सेलेक्ट कर लें। इफ़ यू आर गोइंग टू द बैटल फील्ड यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रूप्स योर ऑल गियर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज वंस। रिसर्च स्पीड, इफ़ यू हैव दिस वन compose, go to this from the basic. So this will reduce your speed up cost 5%. The next level reduce 10%. For the research, this is construction one, which will reduce, depends on your gear level.
सो दोस्तों ये आपके गियर्स जो है रिसर्च का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, आपके डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी परसेंटेज जो है, जो स्पीड अप यूज़ करने की है वो कम कर देगा। आपको ज़्यादा स्पीड अप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतने परसेंट टाइम जो है कम हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का, रिसर्च का, क्राफ्टिंग, ट्रेनिंग ट्रूप्स। So when you are doing any activity, so for example researching, select the gear first, then start research. Before construction, select the construction gear, then start the construction. So each gear affects on itself in each section. So to reduce the speed up cost, you can select these ones. So दोस्तों ये speed up की cost को कम करने के लिए, so come to the left hand side, the bottom one. This will increase your march size. ज़्यादा ट्रूप बाहर भेज सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ट्रूप आपने भेजने। मेरी मार्च साइज कैपेसिटी जो है 16,400 है, और सॉरी यहाँ पे 16,400 है, जो मेरे एक्चुअल ट्रूप्स मार्च साइज़ है वो बढ़ के 16,400 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। So 16,400 will be added. This is my level. So march speed. So if you select this one, this will increase your march speed. This is for troop load. When you are sending your troops for plundering resources from the other people, or you are gathering resources outside of the city. जब आप दोस्तों सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बाहर फार्मिंग कर रहे हैं अपने ट्रूप्स के साथ, आप ट्रूप लोड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कम ट्रूप भेजने पड़े और ज़्यादा सामान लेके आएँ। और जब आप किसी सिटी पे अटैक करके उनका सामान निकालते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान उनका निकाल सकें। मार्च स्पीड टू मॉन्स्टर, आई नेवर यूज्ड दिस वन बिफोर। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मगर क्योंकि मैं नॉर्मली मार्च स्पीड ही यूज़ करता हूँ। आई नॉर्मली यूज़ दिस मार्च स्पीड, आई प्रेफर दिस वन, सो आई डोंट यूज़ दिस वन बिकॉज not really required for me. If you want to march faster towards to the monster, you can use, but when you coming back, maybe the march speed will be slower. So जब आप वापस आ रहे तो आपकी मार्च स्पीड स्लो भी हो सकती है, इसलिए मैं आने और जाने के 33% सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिकॉज when you going to the 66% towards to the monster, when you coming back is slow, so that means you can divide 66 into 2, so 33%. So it will take same time, not big difference. So 33 going, 33% coming back, so it's almost 66%. So come to these ones. When you are not collecting resources outside the city, select the top ones whichever you required. दोस्तों अगर आपके ट्रूप्स बाहर सेलेक्ट कुछ भी गैदरिंग नहीं कर रहे तो आप ऊपर के सामान प्रोडक्शन के जो गियर वो सिटी में वो सेलेक्ट कर लें। वन मोर थिंग, व्हेन यू आर कलेक्टिंग योर रिसोर्सेज आउटसाइड, फॉर एग्जांपल woods, or you can say food. So I select the food, send my troops to the food farms. Then once it's inside the farms, I will remove this one and select the other gear because I want to send my second troop to the woods. So then I select to the woods place for lumber gathering. सो मैं दोस्तों लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जब जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे ट्रूप्स को मैं फूड गैदरिंग के प्लेस पे जाने दूँगा। जब वो पहुँच जाएंगे तो मैं चेंज कर दूँगा, ये लकड़ी इकट्ठा करने वाले गियर को सेलेक्ट कर लूँगा। तो इससे क्या है कि दूसरे ट्रूप्स को सेंड करूँगा तो उसके भी जो गैदरिंग स्पीड बढ़ जाएगी, उसके सामान इकट्ठा करने की स्पीड बढ़ जाएगी। जब सारे ट्रूप्स मेरे गैदरिंग स्पॉट्स पे चले जाएंगे तब मैं प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लूँगा। सो व्हेन यू हैव सेंट ऑल ट्रूप्स टू द गैदरिंग स्पॉट्स,
Then come back to the gears, select your whichever production you need faster in the city, because they have reduced the time of gathering already by selecting these ones, and you no need to keep selected one gear because you can remove. So this way these gears are working. Hopefully you can understand, and this will help you out about the gears. Thanks guys, thanks for watching, have a good one, enjoy your game, and see you in the next video with more tips and tricks.